Hello students, welcome back to online video classes. Okay, dear students, in previous video we completed our poem The Shade. Okay, in The Shade what we discussed in this poem, we discussed a lot of things in this shade poem. Okay, do you remember what we discussed about shade? Yes, we know that what is meant by shade. Then in the shade, what we can put there? मतलब शेड के बारे में हमने देखा था कि शेड कैसा होता है। आपके घर पर भी एक स्टोर रूम होता है, शेड होता है, और उस शेड में बहुत सारी चीजें हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पुरानी चीजें होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उन जैसी चीजों को हम कहाँ पर रखते हैं? तो उस शेड में रखते हैं। और उस शेड के बारे में, और ये जो पोएम है उसी शेड के बारे में कि उस शेड में क्या रखा गया था, वो शेड कैसा है, पुराना है। तो lot of things we discussed already in this poem. Okay, who wrote this poem? The poet of this poem is Franklin. Okay, we know that about Franklin, the poet of this poem, The Shade. Okay, and now about that poet Franklin, whatever he thought about the shade. The shade was where? At the bottom of the garden. The shade of Franklin's bottom of the garden. Bottom of the garden में वो शेड था। तो वहां पर क्या क्या चीजें थी? दैट poet wanted to go and he wanted to peep inside that shade, and his brother, what he said about there is ghost is living in that shade, and that's why he feel fear, he feel fear, मतलब वो डर रहा था। लेकिन एक्चुअली दैट पोएट आल्सो नो दैट देयर इज नो घोस्ट इन दैट शेड। और उस पोएट को भी पता था, फ्रैंकलिन को भी पता था कि वहां पर घोस्ट है क्या, नहीं है। तो वो सिर्फ क्या कर रहा था, उसका भाई जो है उसको डराने की कोशिश कर रहा था। और उस शेड में बहुत सारी मतलब डस्टी रस्टी, मतलब कुछ जंग लगी हुई चीजें, और उसके ऊपर पूरी तरह से धूल मिट्टी बैठी हुई है। उसके कुछ ग्लास भी टूटे हुए, 3-4 ग्लास उसके टूटे हुए। इस तरह से वो पोएम हमने डिस्कस की थी। ओके, होप सो यू अंडरस्टूड whatever we discuss in previous video, the explanation of that poem। जो कुछ भी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था वो समझ में आया होगा आपको शायद। अगर नहीं आया then you can ask me, okay, any topic related to this poem you can ask me any point you didn't understand about that point, that line, that word, then you can ask me. So dear students, in today's video we are going to discuss about the question answer depend on this poem The Shade. Okay, see on page number 49 there is only few questions are there, only 2 questions, and in first number question there are only 4 sub questions and total only 2 questions. Okay, first number question, answer the following questions. Who is the speaker in the poem? Okay, I already told you who is the speaker. The poet of this poem is the speaker. कौन बता रहा है पोएम? उस पोएम में हमें हमारे साथ कौन बातचीत कर रहा है? In this poem the speaker is that poet, and what is the name of that poet? We know that the speaker of the poem is the poet, and the poet name is Franklin when he was a small boy। मतलब वो छोटा बच्चा था। that time story the Franklin, the poet is telling। उस टाइम की स्टोरी, वो जब छोटा बच्चा था तब उस टाइम की स्टोरी शेड के बारे में वो हमें क्या कर रहा है, उस पोएम में बता रहा है। Okay, the answer is the speaker of the poem is poet Franklin when he was young or the small boy. Next question, is she, he afraid or curious or both? Okay, she or he was curious, not afraid. He is always peep through that window and ready to take a peek one day. Okay, here the actually who is the here is the confusion, he or she, मतलब वो लड़का है लड़की, मतलब यहाँ पर हमने देखा कि लड़का है। तो she or he was curious not afraid as she always peep through that window। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि वो क्यूरियस था, क्या कि डरता था। अफ्रेड मतलब डरना, और वो क्यूरियस और अफ्रेड था कि दोनों भी था। तो वो हमें बताना है। he or she was curious not afraid as she or he always peep through that window and ready to take a peek one day। Okay,
और वो क्या करना चाहता था, वो क्यूरियस था, वी नो दैट he always peek through that window, he was curious not afraid. ओके, वो क्यूरियस था, वो जानने की कोशिश कर रहा था उसके अंदर क्या होगा, तो वो क्यूरियस था, वो डर रहा था क्या, नो, he was not afraid of that thing, and he always peeped through that window of that shade, and he wanted to go inside that shade one day. मतलब यहाँ पर वो जो पोएट है वो क्या कर मतलब वो डर रहा है क्या, नहीं, वो क्यूरियस है, उसको जानकारी चाहिए उसके बारे में, उस शेड के बारे में। उसके बाद वो डर नहीं रहा था, वो झांक रहा था उस विंडो के अंदर, और वो एक दिन क्या करना चाहता था, उस शेड के अंदर जाना चाहता था, वो हमें पता है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द पोएम। व्हाट इज शी और ही प्लानिंग टू डू सून, मतलब वो क्या प्लानिंग कर रहा चाहता था, क्या प्लानिंग कर रहा था, वी नो दैट she or he is planning to go inside the shed soon, उसे अंदर जाने की इच्छा थी, he wanted to inside the room, he or she wanted to planning to go inside the shed soon, मतलब उसे क्या करना था, उस शेड में जाने की कोशिश कर रहा था, और वो एक दिन चाहता था कि मैं उस शेड के अंदर डेफिनेटली जाऊंगा। सॉरी, नेक्स्ट, but not just yet, suggest doubt, fear, hesitation, laziness, or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you choose it. Okay, at last line, we know that what is the last line, but not just yet. लेकिन मैं अभी वहां पर नहीं जाने वाला, ये सही वक्त नहीं वहां पर जाने के लिए। सॉरी, तो ये लास्ट लाइन हमें क्या सजेस्ट करती है, कि वो डर रहा है, हिचकिचा रहा है, कि उसके पास कॉन्फिडेंस कम है, कि वो घोस्ट से डर रहा है, क्या चीज है, क्या किस वजह से वो यहाँ पर लास्ट में बोलता है कि अभी वो वक्त नहीं आया है मुझे वहां पर जाने का, तो आपका जो रीजन है वो आपको बताना है। तो but not just yet, suggest the hesitation of the poet from going inside that shed, though he was confident that there were no ghosts, but still he was hesitated to go inside and thought that soon he will go inside the shed, but not now. Okay, why he wanted, actually he was not afraid of that thing, but he just hesitated, मतलब वो डर नहीं रहा था, लेकिन वो जाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन अभी वो जा नहीं रहा था। ओके, और उसके बाद उसको ये भी पता था that I also know about there is no ghost living in that shed, and inside and thought that soon he will wanted to go inside in that shed, but not now. और उसके बाद ये भी पता चलता है कि वो अंदर जाना चाहता है, वो अंदर उस शेड के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो बता रहा है दिस इज नॉट जस्ट येट, अभी वो टाइम नहीं आया है, वो घड़ी नहीं आई कि वहां पर वो अंदर जा सके। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, इज देयर अ रूम इन योर हाउस और a house in your neighborhood locality where you would rather not go alone and never at night? If there is a such place and a story to go with it, let others hear all about it. Okay, everyone know about the ghost story, सबको पता है ghost story. Okay, in our village, in our locality, in our surrounding, everyone not, but the old people, some of the boyish people, they thought they discuss about the ghost. हमारे घर के आसपास, गांव में, लोकेलिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, कुछ जो बातें ज्यादा बातें करते हैं, वो क्या बताते हैं कि मैंने भूत देखा है, तो वो बताते रहते हैं, और ये सभी विलेजेस में, लोकेलिटी में होता ही रहता है। और वो जो भूत की बात करते हैं, तो आपका जो घर है, आपके घर के आसपास गांव में ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पर आप जाते नहीं हो, लोग कहते हैं कि वहां पर भूत है, वहां पर जाना अच्छा नहीं, वो अगर भूत है तो वो आपको क्या कर सकता है, खा सकता है, मार सकता है, इस तरह की बातें आपको बताई जाती है, और वो उस बातों से आप क्या हो जाते हो, डर जाते हो, और उस जगह पर जाने की कभी कोशिश नहीं करते। तो आपको एक स्टोरी पता होगी, वन डे व्हाट हैपेंड, वन बॉय इज नेवर बिलीव ऑन घोस्ट। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा जो था वो घोस्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता था, लेकिन तो सभी उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके फ्रेंड्स ने क्या कहा, उनके गांव में एक घर था, वहां पर वो सभी बोलते थे कि वो वहां पर भूत रहता है, घोस्ट रहता है। तो
वो डिस्कस कर रहे थे कि देर आर थिंग्स दैट घोस्ट आर लिविंग इन दैट शेड। तो वो बच्चे क्या सोचते हैं कि वहां पर घोस्ट रहता है, तो वो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सोचते हैं कि वो जो घोस्ट पर बिलीव नहीं करता है, तो उसे कहते हैं तुम एक काम करो, उस घर में जाओ जहाँ पर भूत रहता है और वहां पर एक कील ठोक कर आओ, वहां पर एक कील ठोकोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वहां पर भूत है क्या नहीं। तो वो बच्चा क्या, मतलब सबने उसे बताया, एक्चुअली में वो घोस्ट पर बिलीव नहीं करता है, लेकिन उसके मन में डर होता है। तो वो क्या करता है, उस घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद वो वहां पर वो कील जमीन पर वो कील ठोकने की कोशिश करता है, और जैसे वो कील ठोकता है वैसे वो डरा डरा हुआ होता है, और डरा हुआ होने की वजह से जल्दी से वो क्या करता है, वो कील ठोक देता है, और कील ठोकने के बाद क्या करता है, भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा लगता है कोई पीछे से उसे खींच रहा है, और पीछे से उसे खींच रहा है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत डर जाता है। तो उसे लगता है उसे क्या किया है, भूत ने जकड़ लिया, उसे पकड़ लिया है भूत ने। तो वो डर जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और उसके जो दोस्त थे तो दोस्त भी डर जाते हैं, उनको पता है, मतलब उनको तो पहले से बिलीव है कि वहां पर घोस्ट है, तो वो भी क्या होते हैं, डर कर भाग जाते हैं। और वो अकेला ही बहुत जोर जोर से चिल्लाता रहता है, उसकी आवाज कोई सुनता नहीं, और वहां पर वो क्या हो जाता है, डर कर बेहोश हो जाता है। और जब अगली सुबह वो उठता है, तब अगली सुबह वो क्या करता है, जब अगली सुबह उठता है तो उसने उसने जहाँ पर कील ठोकी थी, तो वो कील कहाँ पर ठोकी थी, तो वो कील उसका जो शर्ट था उसी शर्ट पर उसने वो कील ठोक दी थी गलती से, और वो कील शर्ट में अटकने की वजह से वो ओके उस शर्ट को वो क्या कर रही थी, मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो वो कील की वजह से वो अटकने की वजह से वो भाग नहीं पा रहा, उस वजह से वो डर गया, उस वजह से उसको ऐसा लगा कि भूत ने उसे पकड़ लिया। तो एक्चुअल में उसे घोस्ट ने पकड़ा था क्या, उसका जो मन का क्या कह सकते हैं, भ्रम है, उसका जो मन में जो डर है, उस वजह से उसे वो वहां पर अटक गया था, उस वजह से वो डर गया। सो घोस्ट तो होते नहीं है, लेकिन जब आपके मन में डर होता है तो इस तरह की चीजें होती रहती है। सो एंड व्हाट यू नीड टू डू हियर इन योर लोकेलिटी, आपके घर पर, आपके आसपास, आपके लोकेलिटी में, आपके विलेज में ऐसी कुछ घटना घटी, ऐसी कुछ सिचुएशन है, ऐसा कुछ प्लेस है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। Okay, here the answer is this question is supposed to done by the students themselves. However, if further asked the question, this question future we will put it. Okay, and here you need to write this situation yourself. खुद को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। ऐसा प्लेस होगा, उसके बारे में किसी ने आपको बताया होगा, your grandfather, grandmother, old people. If they told you about this place, about ghost, then you can write your own answer. Okay, so dear students, the shared poem explanation over in previous video, and today's video we also completed the question answers. So dear students, today we stop here and we will discuss next video, the next topic of honeycomb English textbook. So today we stop here. Thank you very much.